Hello children, hope you are all right. Today we are going to start second part of this chapter, that is physical and chemical change. In previous video we discussed about first part, that is physical change, and today we will discuss one remaining topic of physical change, and then we will move towards chemical changes. So in this video we will discuss crystallization, then chemical change, chemical properties, characteristics and examples of chemical change, and then we will move towards assignment. So let's start with the crystallization. So crystallization is a process of getting pure substances in form of crystal. So what happens actually in crystallization, we will see that it is a process of getting pure substances. In process of evaporation, what we are getting, when sea water gets evaporated, then we are getting salt, and that salt is not in pure form, but in crystallization we are getting substance in form of crystal that is in pure form, and this crystallization is a process which is an example of physical change. In this, what happens, large crystals of pure substance can be obtained from solution and by the process of crystallization. The process, what is crystallization, we will see here. The process of cooling a hot concentration solution of a substance to obtain crystal is called crystallization. The process of crystallization is used to obtain crystals of a pure solid substance from the impure solid substance. Here you can see in this picture that we are heating copper sulfate solution and we are getting copper sulfate crystals, and it is in china dish, that is this it is used, and this is the process of crystallization, how we are getting copper sulfate from copper sulfate solution. Okay, so now we will move towards next change, that is chemical change. In physical change we studied that there is no new substance formed, but here just opposite of physical change, new substance will be formed. So chemical changes are also called chemical reactions. A chemical change occurs when two substances react chemically to form a new substance with different chemical properties. So the chemicals which are going to react with each other will have different chemical properties so that they can produce a new substance. So by the process of chemical reaction we are able to get new substances. So what are the chemical properties? Like previous video we have seen what are the physical properties. So here we are going to see what is chemical properties. So toxicity of a substance is an example of chemical properties. That oxidation state is an example. Then heat of combustion. Heat of combustion means if we are going to burn something, then how much heat will be produced. Okay, then chemical stability, whether the substance will be stable or not, yeah, how long it is going to be stable form. Then inflammability, like कितना ज्वलनशील है वो, कितनी तेजी से जल सकता है, या हाउ पोटेंशियल इट हैज़ फॉर बर्निंग, कितना तेजी से ये जल सकता है, कितना तेज ये फायर को कैच कर सकता है, पकड़ सकता है. देन कोऑर्डिनेशन नंबर, देन रिएक्टिविटी, देन पॉसिबल केमिकल बॉन्ड्स, then enthalpy of formation, if something is going to form, new substance is going to form, how much heat is going to release or how much it requires heat. So these are the things that constitute chemical properties of a substance. So now we will see few examples of chemical change. Here baking soda, the chemical formula of baking soda is NaHCO3. So reacts with vinegar, that is acetic acid, and
carbon dioxide comes out. The carbon dioxide gas is released, okay, which turns lime water milky. Therefore it is a chemical change. So here we can see how here we can see that carbon dioxide is released and this whole water is turning milky. Milky means it appears like milk, दूध जैसा दिखाई देता है. So this is a reaction which shows that chemical change is taking place. Another example is reaction of copper sulfate with iron produce two new substance. First one is sulfate and another one is copper. Here you can see that iron nail is there. So in first beaker you can see that copper sulfate solution is there. Another beaker you are seeing that there is iron sulfate solution. In another beaker, that green one you are seeing that copper deposition on the iron nail. Iron nail पर कॉपर का आप डिपोजिशन, कॉपर को इकट्ठा हुए आप देख सकते हैं. तो यहाँ पर भी आपको केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल मिल रहा है. सो दोनों चीज़ों जो आपने देखा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज एंड यू नो दीज आर परमानेंट चेंज विच कैन यूजुअली नॉट बी रिवर्स्ड टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस. So if a chemical reaction is taking place, what are the things that will accompany that reaction? So there may be radiation or absorption of heat. या तो heat निकले या तो heat लगे उस reaction में. Production of sound, वहाँ आवाज़ निकल सकती है. जैसे we are cracking crackers, जब we are burning crackers then you are able to see light and sound both. Chemical change in color of a substance. जब भी कोई रिएक्शन होता है so there is probability that the change in color will take place. Change in the smell of a substance, formation of a gas, formation of a solid as residue. So these things may take place. आगे भी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे केमिकल चेंज में क्या क्या है. So we will see chemical changes in our daily life. हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में केमिकल चेंज कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हैं, कैसे कैसे हैं, तो हम कुछ एग्जांपल्स देख के इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे. सो केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स एंड व्हाट आर दीज चेंजेस वी आर सीइंग. लाइक मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन. जब भी दवाई हम बनाते हैं तो इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मेडिसिन, जो दवाइयाँ हम डेली यूज़ में लेते हैं, वो हमें मिलती है. अनदर एग्जांपल हियर वी आर सीइंग दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज. एंड बर्निंग, एनी बर्निंग, कोई भी जहाँ कहीं भी आग लगी हुई है, समझ लीजिए कि वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है. यह एकदम आप एक तरीके से मान लीजिए कि अगर बर्निंग इज टेकिंग प्लेस, कहीं भी आग जल रही है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है. ओके. एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क, जैसे आपने बताया कि हम क्रैकर्स को जलाते हैं, वहाँ पर भी वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है. जब भोजन खराब होता है, फूड गेट स्पॉइल्ड, तो आपको बहुत फाउल स्मेल, बहुत ही गंदी सी स्मेल निकलती हुई महसूस होती है. तो वहाँ पर भी केमिकल चेंज होता है, फूड की क्वालिटी में बदलाव आता है और फूड कंजम्पशन योग्य नहीं रह जाता है. मीन्स देयर इज केमिकल चेंज. जब भोजन खराब हो जाता है तो आप फिर से उसे सही से नहीं प्राप्त कर सकते. सो यू कांट रिवर्स दैट. आप घर पे नॉर्मली देखते होंगे कि जब आपके घर सेब आता है, आप उसे टुकड़े में काट के रखते हैं और कुछ देर तक जब आप उसे कंज्यूम नहीं करते हैं, खाते नहीं हैं, तो फिर आप देखते हैं कि ब्राउन कलर की लेयरिंग हो जाती है उसके ऊपर. तो ये सब चीज़ें भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हैं. आलू को काट के रखते हैं, वो भी आपको ब्लैकिश कलर में दिखाई देने लगता है. यहाँ तक कि ब्रिंजल भी जब आप उसे काट के रखते हैं तो उसमें भी आपको कलर चेंज दिखाई देता है. सो दीज आर द सम एग्जाम्पल विच आर
very clearly it is showing that there is change taking place. So this is an example of chemical change. Even neutralization reaction is also change, chemical change. You saw in previous chapter that acid and base reacts with each other and they form a salt, and water formation takes place. So that neutralization is also an example of chemical change. Photosynthesis, that is performed by plants. So this is again example of a chemical change, because light energy is converted by plants, especially by chlorophyll, into chemical energy, and that is stored as food in form of carbohydrates in plants, and that later on we are using for our survival. So digestion of a food in our digestive system is another example of chemical change. So these are the major example of chemical change. Now we'll see rusting of iron. This is very common, that's why we are using in a separate manner here by keeping it separate heading. तो जो जंग लगता है वो भी एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। क्यों हम इसको अलग से डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि रस्टिंग से हमारे सोसाइटी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ही ज़्यादा पैसे का नुकसान होता है। और क्यों होता है हम आपको बताएंगे। पहले देखिए कि रस्टिंग में होता क्या है। दैट आयरन, जब भी आप आयरन को खुले में कहीं रख देते हैं तो रस्ट होता क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर इट केमिकली रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड वाटर इन द एयर to form a red brown flaky substance called rust. और केमिकल रिएक्शन क्या है इसका? आयरन, दैट इज डिनोटेड बाय Fe, देन ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? एयर से मिलती है। और वाटर जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में होता है या कभी रेन से मिल जाता है। तो ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? रस्ट बनता है। रस्ट का केमिकल नेम है आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। इसको आप इसमें देख सकते हैं। पहले जब आयरन पे रस्ट नहीं लगा होता है तो वो चमकीला दिखाई देता है, और जब रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है तो आपको ब्राउनिश कलर का दिखाई देने लगता है। तो इस इमेज में आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे ये ब्राउन अपीयरेंस यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, और कैसे इसकी चमक जो है रिएक्ट करने के बाद आपको अलग तरीके से दिखाई देती है। ओके, सो होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो कैसे रस्टिंग होती है? आपने देखा है कि जब ह्यूमिड एयर और ये संपर्क में आती है किसके? आयरन के, इन प्रेजेंस ऑफ, जैसे ह्यूमिड एयर है तो मीन्स वाटर इज मिक्स विद दैट। तो ऑक्सीजन और वाटर जब रिएक्ट करता है किससे? आयरन से, तो वहाँ रस्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है। अब ये रस्टिंग जब होती है तो नुकसान क्या होता है? इट ईट्स, किसको खाता है? लोहे को, और उसको कोरोड कर देता है, उसको खुरदरा बना देता है, उसकी क्वालिटी को गिरा देता है, और जिसकी वजह से उसके क्वालिटी में चेंज होता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। उसके जब आप बेचने जाएंगे या उसका, तो आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा। या हम जो भी चीज़ें बनाते हैं वो चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हैं, जैसे ब्रिज बनाते हैं, जहाज़ बनाते हैं, कार बनाते हैं, ट्रक की बॉडी बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये धीरे धीरे जब उस पर जंग लगती है तो ये चीज़ें बर्बाद होती हैं और उसकी क्वालिटी लॉस होता है, वो कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दैट्स वाई वी आर वरिंग अबाउट रस्टिंग। तो अब कैसे इसको रोक सकते हैं? तो वेरी सिंपल मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्ट इज टू कोट द आयरन विथ ऑयल और ग्रीस और पेंट। सबसे पहले हम देखते हैं, हम चीज़ों को कलर कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है? चीज़ें सुरक्षित पड़ी रहती हैं। उसमें होता क्या? पेंट करता क्या है? ये बैरियर का काम करता है, ये पर्दे का काम करता है, ये ऑक्सीजन और वाटर को रिएक्ट नहीं करने देता, किससे? आयरन से। और जब रिएक्शन नहीं होता है, व्हेन वी आर एबल टू स्टॉप द रिएक्शन, देयर विल बी नो रस्टिंग। और जितना आप डिले करते जाएंगे उतना ही वो रस्टिंग से सेफ रहेगा। ग्रीस इज अनदर वे ऑफ यूजिंग अवॉइडिंग रस्टिंग। तो ग्रीस में क्या होता है? ग्रीस भी हाइड्रोफोबिक होता है, पानी को पास नहीं आने देता है, इसकी वजह से भी रस्टिंग रुक जाती है।
और दूसरा प्रोसेस क्या है जो कि ज़्यादा साइंटिफिक है, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। एंड व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन? इसमें क्या करते हैं हम, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक एंड आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। आप पूछ रहे थे पिछले क्लास में कि व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन, तो यही होता है कि जब जिंक और क्रोमियम को हम जब किसी मेटल के ऊपर, आयरन के ऊपर चढ़ाते हैं, उसकी लेयरिंग कर देते हैं, तो उससे उसका जो कोरोजन होता है वो रुक जाता है, उसकी रस्टिंग नहीं होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा गैल्वेनाइजेशन क्या है ये। तो रस्टिंग ऑफ शिप, जैसे जहाज भी ये सबसे मेजर, क्योंकि जो जहाज, पानी की जहाज होती है, ये हमेशा पानी में रहती है और इसे आप पानी से नहीं बचा पाएंगे, तो इसको पेंट करके, इसका गैल्वेनाइजेशन करके, इसकी ग्रीसिंग करके हम इसको ख़राब होने से रोक सकते हैं। एंड अनदर वे ऑफ यूजिंग स्टेनलेस स्टील, जब स्टेनलेस स्टील को हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी कोरोजन के चांसेस बहुत घट जाते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी चीज़ों को कंप्लीट किया। आपने देखा कि व्हाट इज़ फिजिकल चेंज, व्हाट इज़ केमिकल चेंज, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, एंड व्हाट आर द मेजर थिंग्स दैट वी आर गेटिंग आफ्टर chemical change. Now we will see that what you have to do in your assignment. First you take out notes, and then what you have to do, you have to write the summary of this chapter in your notebook, and you have to write 5 example of chemical change जिसका डिस्कशन इस वीडियो में नहीं हुआ है. So these are the major resources from where I have collected the material, and you can also go through. So all the best. Thank you.